ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھا گیا، میرے خیال سے یہ کسی کے لیے نیا نہیں ہو۔ یہ ایک واقعہ ہے جو نعمان کوڑی کا ہے۔ یہ کتنے لوگوں نے پہلے سنا ہوا ہے؟ میرے خیال سے سب نے نہیں سنا ہے۔ نعمان کوڑی ایک فوج کا سپہ سالار تھا۔ کیا تھا؟ ایک چارام لشکر کا سردار تھا، ان کا آقا تھا، اور وہ بہت سی جنگیں فتح کر چکا تھا، اور انہوں نے ایک جنگ فتح کی اور وہاں سے ایک چھوٹی بچی کو وہ اسیر کر کے اپنے ساتھ لے کر آ گئے۔ اور جب اسیر کر کے اس لڑکی کو لے کے آئے ہیں تو وہ لڑکی کیا کہتی ہے کہ اگر میرا آقا علیشہ یہاں ہوتا تو وہ اسے پاک صاف کرے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حالتیں کیا ہیں۔ ہم لالچی ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم میں لالچ بستا جا رہا ہے، ہم دنیا کی فکروں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں وہاں پر اجاسی نے کیا کیا ہے، وہ دنیا کی فکروں میں ہے، دنیا کی دولت میں ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، نعمان کوڑی کے پیچھے جا کر بھاگ کے اس سے دولت لے جاتا ہے، جبکہ علیشہ نے اسے نہیں دیتا۔ تو نعمان کوڑی کون تھا؟ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک لشکر کا سردار تھا۔ تو وہ ایک بچی کو اپنے ساتھ اسیر کر کے لے آتا ہے، اور وہ نعمان کوڑی کی بیگم کی بیوی کی خدمت گھر پہ کرتی ہے۔ تو وہ اپنی بیوی کو بتاتی ہے کہ اگر ہمارا آقا یعنی کہ علیشہ یہاں ہوتا تو وہ کب سے ہمارے مالک کو پاک صاف کر دیتا، اس کا کوڑ جاتا رہتا۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹی بچی نے خدا کی گواہی دی ہے، خدا کے نام کو دوسرے قوموں تک پہنچانے کا وسیلہ بنی۔ پہلا کام جو یہاں پر ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس بچی نے خوشخبری کو پھیلایا ہے، خدا کے کلام کو دوسری قوم، دوسرے علاقے میں جا کر گواہی دی ہے کہ اگر میرا آقا علیشہ یہاں ہوتا تو ہمارا مالک ضرور اپنی اس کوڑ کی بیماری سے شفا پا جاتا۔ تو یہ بات اس نے نعمان کوڑی کی بیگم کو بتائی ہے، نعمان کوڑی کی بیگم کو بتائی ہے، اور اس نے یہ بات نعمان تک پہنچائی ہے، اور نعمان نے اس بات کو کیا کیا ہے، اس بات کو آگے لے کے گیا ہے۔ نعمان نے کو ایک خط بھیجا گیا ہے کہ اس خط میں تو جا اور اس خط کے بارے میں جا کر گواہی دے۔ تو کیا ہوتا ہے، اسے تھوڑا سا پیچھے کر، تو کیا ہوتا ہے آگے جا کر کیا ہوتا ہے، اسے ایک مضمون کا شاہ اسرائیل کے نام خط لکھ کے دیا جاتا ہے۔ وہاں کا بادشاہ شاہ اسرائیل کے نام ایک خط لکھتا ہے کہ میں ایک اپنے سپہ سالار کو نعمان کوڑی کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں، تو اسے کیا دے، شفا دے۔ تو شاہ اسرائیل جب اس خط کو، جب اس مضمون کو پڑھتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے اس نے جنگ کرنے کا، اس نے مجھ سے جھگڑا کرنے کا یہ کیسا ڈھونگ نکالا ہے، اس نے کیسا سلسلہ نکالا ہے، کیسا بہانہ نکالا ہے۔ وہ سردار کاہن ہے نعمان کوڑی، اور وہاں پر اسے ایک مضمون دیا جاتا ہے کہ میں اپنے ایک سپہ سالار کو جس نے اتنی جنگیں فتح کی ہیں تمہارے علاقے میں شاہ اسرائیل میں بھیجا۔
बच्ची के कहने पर उसे शाह इस्राइल भेजा गया। जब उसे शाह इस्राइल भेजा गया है तो क्या होता है, वो शाह इस्राइल का बादशाह जब उस मजमून को, जब उस खत को पढ़ता है तो वो कहता है कि ये अराम के बादशाह ने एक जंग करने का बहाना ढूंढा है, मेरे यहाँ कौन है जो इसे शिफा देगा। हमने क्या यहाँ पर शिफा खाना खोल रखा है? क्या हमने यहाँ पर बीमारों को शिफा देने का कोई ऐसा सिस्टम बनाया है जो ये अपने इलाके के सब बीमार मेरे इलाके में भेज रहा है? उसने क्या किया, अपने कपड़े फाड़ डाले और राख कर बैठ गया। उसने कहा वो हमें मारेगा और जलाएगा, हम उसके सिपा सलार को शिफा नहीं दे सकेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, वो हमारे पूरी कौम को मार डालेंगे। तो वो बड़ा गमज़दा होता है और अपने कपड़े तक फाड़ देता है। जब ये खबर मर्दे खुदा अलीशा के पास पहुंचती है, जब वो इस बात को सुनता है तो वो बादशाह के पास जाता है, कहलवा भेजता है कि तू ऐसे करना कि जब वो सरदार आए तो उसे मेरे पास भेजना और वो जानेगा कि इस्राइल में एक नबी रहता है। बादशाह परेशान है कि उसने खत भेज दिया है, अब उसके सिपा सलार को कैसे शिफा मिलेगी। सब परेशान है, लेकिन क्या होता है जब वो अलीशा के पास आता है, जब उसे अलीशा के पास रथ के साथ भेज दिया जाता है तो वो क्या अलीशा के दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है कि उसके जब लॉक करता है उसके दरवाजे से तो आगे से एक कासिद निकलता है, एक उसका खादम निकलता है और उसे जाकर बताता है अलीशा नबी है मर्द खुदा बार नुमान जोड़ी तुझसे शिफा लेने के लिए आया। तो अलीशा अंदर से ये पैगाम भेज देता है कि उससे कह दो कि यरदन पे जाकर 7 गोते मारे, उसका कोड जाता रहेगा, वो नुमान कोड़ी से मिलने बाहर नहीं आता, वो अंदर से ही पैगाम भेज देता है कि क्या करो, उसे जाके कहो कि यरदन में 7 गोते मारो। 7 का अदद काबिलियत का अदद है, फसल का अदद है। तो यहाँ पर वो कहता है जब वो 7 बार गोते मारेगा तो उस पर फसल हो जाएगा, उस पर रहम हो जाएगा। तो वो बड़ा गुस्से में आता है, कहता है मैंने सोचा था कि ये बाहर निकल कर मेरे पास आएगा, मुझे छुएगा, अपने खुदा के नाम से मुझ पर दुआ करेगा। ये सारा वाकया 5 बार में लिखा हुआ कि ये मुझ पर आएगा, अपने खुदा के नाम से मुझ पर दुआ करेगा और मेरी बीमारी की जगह पर हाथ रखकर दुआ करेगा और मैं शिफा पाऊंगा। लेकिन वो गुस्से ज़्यादा नाराज होता है और गुस्से में आता है, क्या हमारे दमिश्क में दरिया नहीं है? वहाँ बड़े बड़े दरिया, बड़ी बड़ी नदियाँ, मैं उसमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता था जो उसने मुझे यरदन में गोते मारने के लिए कहा। उसके साथ के जो लोग होते हैं, जो उसके साथ बाकी उसका हमला होता है, वो कहता है कि इसने कोई बड़ा काम आपको नहीं कहा, अगर ये मर्द खुदा आपको कोई बड़ा काम कहता तो आप वो भी तो करते। उस मर्द खुदा ने ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटा काम था क्या कि यरदन में 7 गोते मारने हैं, हम यहाँ से गुजर ही रहे हैं तो आप क्यों ना इसमें 7 गोते मारने। तो जब वो गोता मारता है तो उसका जिस्म बच्चे की तरह 80 लोग बहाल हो जाता है। तो फिर वो वापस मर्दे खुदा के पास जाता है और
वो चीज़ें जो वो अपने साथ लाया था वो क्या थी? 10,000 चांदी और 6,000 मस्कार सोना और 10 जोड़े कपड़े वो अपने साथ लाया था। वो वापस जब कोर्ट से शिफा पा जाता है तो मर्द खुदा के पास जाता है। तो मर्द खुदा उसे कहता है कि मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं। वो कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तुम इसे ले जाओ, तुम इसे वापस ले जाओ। तो वो कहता है कि मैं जान गया हूँ कि यहाँ पर इस्राएल में खुदा है, इसके अलावा कहीं भी खुदा मौजूद नहीं, कहीं भी खुदा नहीं। वो कहता है मर्द खुदा से कि तू मुझे माफ़ करना, जब मैं अपने मंदिरों में सर होगा तो वो मेरी मजबूरी है, लेकिन आप मुझे माफ़ कर देना। मैं जान गया हूँ कि आप ही जिंदा खुदा, आप ही जिंदा खुदा के खादम हो। ये आयत नंबर 18 में लिखा है। और इसी बात में खुदावन तेरे खादम को माफ़ करे कि जब मेरा आका प्रशिश करने को नून के मंदिर में जाए और वो मेरे हाथ पर तकिया करे और मैं कानून के मंदिर में सर्व हूँ, तो जब मैं कानून के मंदिर में सर्व हूँ तो खुदावन इस बात में तेरे खादम को माफ़ करे। कहता है कि जब मैं जाकर उस मंदिर में सर्व हूँ तो तू अपने खादम को माफ़ कर। यहाँ पर वो उससे अगले काम के लिए भी माफ़ी मांग कर जा रहा है। आज नंबर 18 हमें अगर पता भी हो कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन हम माफ़ी नहीं कर पाते। एक कल परसों का वाक़या है। एक पर्सन ने मुझे कहा कि भाई मुझे पता है कि भाई साहब मुझे एक बंदा एक फीमेल गुमराह कर रही है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा कि आपने बपतिस्मा लिया है, अपने ऊपर जब निशान कर दिया है, तो आपका फर्ज है कि आप गुनाह से पाक रहें, आप गुनाह से दूर रहें। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, जब अपने ऊपर निशान कर देते हैं, तो फिर हम पर अच्छा ठीक है, मैं बहुत करके जा रहा हूँ। अगर आप अपने नाम के साथ जंजीरें या खादम लगा लेते हैं, तो फिर आप पर डबल जिम्मेदारी है कि आपने अपने नाम को भी सेफ रखना है और जो आपके साथ नाम लगा है उसे भी सेफ रखना है, ताकि आपके उस नाम की बदनामी ना हो। तो फिर उसके बाद क्या होता है?